मैं सारे तांत्रिकों के बिहाफ पे मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगता हूँ। What was that moment when you realized or you figured कि tantra is my calling? Bad people judging bad people for being bad differently. ईश्वर और गुरु आत्मे मूर्ति भेद विभाजिनी। आप, आपके ईश्वर और आपके गुरु, ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। स्क्रीन पे जितने हैं सबकी लेफ्ट नासिका चालू हो, ईड़ा नाड़ी चालू। We will have a very good chat. Yes. I can't promise whether this chat will be good or not good. Welcome to Beyond the Basic with me, Pranita Pandit. आज का एपिसोड is going to be amazing, knowledgeable, hilarious और भी बहुत सारा. We're going to have a conversation with Hitesh Guruji, who is a tantric. एपिसोड थोड़ा सा लंबा है, तो if you want a better experience, then you can switch to 1.5x. So let me welcome Hitesh Guruji. थोड़ा सा मैं प्रीलूड देना चाहती हूँ बिफोर वी स्टार्ट दिस इज दैट आई नो हितेश जी फॉर ऑलमोस्ट ना 25 years, उससे कुछ ज्यादा ही 20 years 2007 actually you are the first person who I met who knew about aura cleansing, healing and a lot of puja that जो सेट पे हवन होते थे हम वहाँ मिले थे and that is how we got connected and I remember you came and you did this whole aura cleansing for me and some more people and then we started talking and understanding. I don't think कि मैं इतनी capable हूँ कि मैं हितेश जी का पूरा introduction दे सकूँ. So I would like you to tell our audience a little bit more about you. I was born a special child. I don't know if you remember this one. I know this, yes. And to develop my brain, I was put into spirituality. Yes. After the brain got powerful and developed, I worked ahead and I wanted self-realization. So I kept going deeper and deeper. But my mind was caught up with that Brahmakshatriya family about rights and wrongs. So the self-realization, which is non-duality, wasn't happening because this pair of dualities, right, wrong, sin, merit, was stuck in my head. To get out of it, you know me as what I am, called Tantric. And only after that, self-realization happened. So that which was I was trying from various lifetimes finally happened when I became something which 50% of people are amused to know. Yes. But 50% people absolutely reject and hate or are afraid of it. सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आई थिंक हमारे ऑडियंस के दिमाग में भी हमेशा चलता रहता है, जो भी कोई ये सोचता है अरे वो तांत्रिक के पास जाता है, ओ माय गॉड, इतना नेगेटिव फीडबैक आता है लोगों का कि पता नहीं क्या पाप कर दिया हो आपने या कितने खराब इंसान हो आप कि आप तांत्रिक के पास जाते हो. तंत्र का अर्थ क्या है, आप क्या समझते हो? तंत्र मतलब टेक्निक. जी. डायरेक्ट ट्रांसलेशन. आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र दिवस मनाते हो. मतलब स्वतंत्र दिवस तो ब्रिटेन छोड़ के पूरी दुनिया मनाती है, तो सब तांत्रिक है क्या पूरी दुनिया? और है ही. स्वतंत्र मतलब गवर्नमेंट, गवर्नेंस एज वेल एज टेक्निक. बैड पीपल जजिंग बैड पीपल फॉर बीइंग बैड डिफरेंटली. नाम तो सभी का बदनाम है. डॉक्टर्स का बदनाम है, पुलिस का बदनाम है, पॉलिटिशियन, एक फील्ड बता जो बदनाम ना हो. बिल्कुल. पर वो जिस तरीके से पुलिस खराब है या मीडिया खराब है या पॉलिटिक्स खराब है, उससे अलग तरीके से तांत्रिक खराब है. तो सब एक दूसरे पे उंगली उठा रहे क्योंकि सबके कपड़े पे दाग है. आंख खोलो और ये भय निकालो. एग्जैक्टली. एक्चुअली मैं भी जानना चाहती हूँ, इतना पावरफुल है क्या तंत्र जो लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड उसने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके इस इंसान की जान ले ली या फिर उसको ये कर दिया बिकॉज ऑफ तंत्र. कैन यू एक्चुअली डू दैट? तंत्र
knows energy more than any one of us. So they can change the rhythm of your breath, your vibrations, that you become ready for something which is called death of the body. A seed can be sown in your mind. आपके अष्टम भाव के ग्रह जागृत हो गए, हाँ. तो आपका मृत्यु योग बनता है. अष्टम भाव के ग्रह नीचे आके आपके पेट में चाकू मार देते नहीं. They change your thoughts, they change your pattern of breath, they take you towards death. जहां तक मृत्यु का सवाल है, इस पृथ्वी पे मृत्यु होती ही नहीं है. 7 साल के अंदर हमारे शरीर के अंदर कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो पूरा नहीं हो. 7 साल में पूरा शरीर नया हो जाता है. आपका मॉडर्न साइंस ये कहता है. तो शरीर की मृत्यु नहीं होती है, रिसाइकल होता है शरीर. क्या ऐसे कोई प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं? बिकॉज मुझे मतलब बताया गया था और मैंने देखा है कि कोई लोग होते हैं, उनकी चार्ट में ऐसे प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं जिससे तंत्र या कोई ऐसी विद्या उन पे काम नहीं करती. एक ऐसा होता है ना कि डाल सड़ी हुई है और उस पे जाके कौवा बैठ गया और वो डाल टूट गई. तो अगर आपके कोई ऐसे नेगेटिव प्लैनेट चल रहे हो और उसमें आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया तो आप मरोगे, वरना तंत्र प्रयोग काम नहीं करेगा. और वो भी अगर आपने प्रैक्टिस से अपने मन को मक्कम कर लिया है तो वो भी आप पे काम नहीं करेगा. प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं एंड दिस एनर्जी, इज देयर अ टिप दैट यू कैन गिव जिससे आदमी अपनी एनर्जी अपने और लाइक यू कैन इवन डू ऑरा क्लेंजिंग एंड ऑरा रीडिंग, जो आपने मेरे लिए भी किया और बहुत लोगों के लिए किया है, कि घुसे एंड यू लाइक इसकी तुम्हारी ऑरा ऐसी लग रही है, रुको मैं ठीक कर देता हूँ. सो इज देयर समथिंग दैट वी कैन लाइक पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट कैन टेक, एक छोटी सी चीज? कुत्ता 10 साल जीता है ऐसे सांस लेता है. एक कछुआ 4 मिनट में एक सांस लेता है, 400 साल जीता है. तो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया तय करती है आप कितने साल जियोगे, क्योंकि आपकी कुंडली में ये नहीं लिखा है कितने साल जियोगे, आपकी कुंडली में ये लिखा है कितनी सांसें लोगे. मनेन त्रयति इति मंत्र, जो मन को तार देता है वो मंत्र है. मंत्र बोलना नहीं है, मंत्र को सांस बना देना है, आपके ब्रेथ की रिदम बना देना है. जब आप मुंह बंद करके सांस लेने की एक प्रक्रिया अपने जीवन में उतार लोगे तो आप जो है नवग्रहों को, मृत्यु को, दुख को, शोभ को, हर चीज को जीत लोगे. ये Wow. मेरी गारंटी है. ये तो आई थिंक बेस्ट टिप था फॉर मी ऑल्सो. रिसेंटली ना देयर इज अ वीडियो जो बहुत वायरल जा रहा था अबाउट वूडू. कैमरा का सेटिंग तो सही है, आपको मैं कहाँ दिखाई दे रहा हूँ? कैन यू पॉइंट? आप उंगली दिखा सकते हो कि मैं आपको कहाँ दिख रहा हूँ? हाँ. सामने? हाँ. नहीं, मेरा पिक्चर आपके दिमाग में चल रहा है और आप लोग के भी. आपको मैं आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ. आप मेरा जो वीडियो और परी का जो वीडियो है ये आपकी स्क्रीन में आपके माथे में चल रहा है. ये सामने में क्यों दिखाई दे रहा हूँ? क्योंकि सामने पर्दा है पर यहाँ पे प्रोजेक्टर है जी. तो मुझे एक जानना है, क्योंकि मैं इतना मीडिया फील्ड में उतना मैंने काम नहीं किया है जितना आपने किया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो जो प्रोजेक्टर में होता है वो पर्दे में आता है कि जो पर्दे में होता है वो प्रोजेक्टर में आता है? जो ऑफ कोर्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं वही आता है. तो आई एम जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ योर इमेजिनेशन एंड यू आर द फ्रैक्शन ऑफ माय इमेजिनेशन. तो जो मन में है वो सामने आता है. राइट. और आप अपने मन को कन्विंस कर लो कोई चीज के लिए तो वो मैनिफेस्ट हो ही जाती है. हाँ, आजकल बहुत ये मैनिफेस्टेशन का भी चल रहा है. तो मैं अभी अगर मन को पूरी तरह से ऐसे कल्पना करूं कि परी का पॉडकास्ट दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट हो जाए और इसको मन में रिपीट करूं, जैसे कहते हैं ना आपके मैनिफेस्टेशन वाले रिपीट, तो बिहाइंड ऑफ द माइंड एक फियर है कि नहीं होने वाला है. ये जो बिहाइंड ऑफ द माइंड फियर रहता है ना, इसको निकालने के लिए तंत्र के पास एक बहुत बड़ी कला है कि ड्रीम अबाउट द इम्पॉसिबल. मैं ये मन में ना करूं कि परी का इस पृथ्वी पे पॉडकास्ट सबसे फेमस और सबसे बड़ा पॉडकास्ट हो जाए. मैं ये मन में भावना करूं कि इस ग्रह पे और मंगल ग्रह पे भी जो इम्पॉसिबल है, और जो इम्पॉसिबल है उसके लिए मैंने जैसे ही बोला आपकी स्माइल आ गई. क्यों? क्योंकि वो इम्पॉसिबल है. इम्पॉसिबल जहां पे ड्रीम हो जाता है ना, वहां पे फियर निकल जाता है. अब कैसे संभव है कि कोई पुतले को पिन मार के आपको हानि पहुंचा सके? इम्पॉसिबल है. और इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि तंत्र वुडू ड्रीम्स अबाउट द इम्पॉसिबल एंड मेक्स इट पॉसिबल. सो व्हेन यू वांट टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम,
repetition is not going to help, because at the back of the mind you're also repeating that it is not going to happen. Yeah. But when you dream about the impossible, it's possible. It becomes possible. What was that moment when you realized or you figured कि tantra is my calling, या फिर I want to be a tantric and I want to attain siddhi in this field? Siddhi was never hunger for which I went to call Tantra. I saw my 150 lifetimes before this lifetime. And in all the lifetimes, I saw that I was desperate to get self-realization. And I had done everything under the sun, gained all the knowledges possible to get self-realization. But this was one thing which I had never touched in 150 lifetimes, thinking that it is a sin. So I went to my guru and I said, I'm ready to do whatever you say, go beyond right and wrong, sin and merit. And that is how I entered into this field. I stepped into this field. अभी इतना बड़ा हमारे देश ने सेलिब्रेट किया है महाकुंभ. Mahakumbh is the world's largest gathering of people. This year, more than 400 million visitors are expected to attend. And I also went. आपने देखा ही होगा. पाप धुल गए? नहीं, कोई मतलब मैं तो खैर उस थॉट प्रोसेस से नहीं गई थी कि मैं वहां जाके अपने कोई पाप धो रही हूँ. आई जेन्युइनली फेल्ट कि एक ऐसा आई एम अ पार्ट ऑफ अ एनर्जी फील्ड एंड आई वांट टू इनकैश ऑन दैट, या मैं जाकर वहां पर उसका पार्ट होना चाहती हूँ बिकॉज इट वाज अ कॉलिंग फ्रॉम विद इन. और मुझे लग रहा था कि मैंने कभी मतलब मैंने कुंभ नहीं किया है तो मैं एक बार कर लूँ. एंड यू वोंट बिलीव, वन डे बिफोर I was going, my mother said, अरे तुम तो कुंभ नहा चुकी हो, बचपन में हमारे साथ हम गए थे. And I was like, अरे वाह, मैं तो ये सोच के जा रही थी और reality is something else. But it was eye-opening for a lot of people. आप गए थे and what is your thought? कुंभ की शुरुआत कैसे हुई ये काफी लोग नहीं जानते. एक गुरु अपने काफी शिष्यों को लेकर certain planetary position थी, तभी गंगा नदी में त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में नहाने उतरे. और जब बाहर निकले तो सारे शिष्य जो उनके साथ थे नहा रहे थे, उन्होंने कहा कि हमको पता चल गया है कि आत्म साक्षात्कार क्या है, कि हमको ये पता चल गया है कि हम ही ईश्वर है. वो चौंक गए क्योंकि उनको भी तभी ऐसा महसूस हुआ कि उनको वो प्राप्त हो चुका था. Because it is self-realization, not self-becoming. You realize that you are God. ज्योतिष विद्या में निपुण थे, इसके लिए उन्होंने देखा कि प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी. उन्होंने कहा कि अभी वापस कभी होगा, तो शायद 12 साल के बाद या 3 साल के बाद. उन्होंने कहा 3 साल के बाद हम वापस कोशिश करेंगे. तो 3 साल के बाद जब वो वापस कोशिश करने गए तब कुछ नहीं हुआ, नए शिष्यों को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ. तो चिंतित हुए, शायद गलत थी उनकी भविष्यवाणी. लेकिन तभी कुछ दिनों के बाद समाचार आए कि वो नासिक में हुआ. तो उनको पता चला जहां जहां वो अमृत के बूंद गिरे राहु केतु की वजह से, वहां वहां नहाने से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है. और इस वजह से फिर ये कुंभ की प्रथा ये 3 जगह पे 4 जगह पे शुरू हुई. परंतु लोगों के मन में ऐसी भ्रांति है कि जब हमारे कर्म समाप्त हो गए, जब हमारे पाप नष्ट हो गए, तभी मोक्ष हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है. नहीं, ये भ्रांति है. मैंने पहले ही कहा भ्रांति है. यू आर गॉड विथ ऑल योर फ्लॉस. और आप हो ही नहीं तो किसके कर्म, किसकी औकात है कि कोई कर्म करे, अच्छे या बुरे. फॉर डूइंग एनीथिंग यू हैव टू बी फर्स्ट. अब साइंस ने क्या आफ्टर लाइफ के लिए प्रेडिक्ट किया है कि कोई भी काम करने से पहले, ये ब्रॉडकास्ट करने से पहले मैं भी था, आप भी थे, तभी हम ये ब्रॉडकास्ट कर पाए. तो पैदा होने से पहले हम हो गए, इसीलिए तो हम पैदा हो पाए जी. ये साइंस का तर्क है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सही गलत मैं नहीं बोल रहा हूं. तो अगर जन्म से पहले हम थे तभी जन्म ले पाए, तो मृत्यु के बाद भी हो गए. तो फिर मैंने ये देखा कि अगर मैं हूं ही नहीं तो किसको पता चला कि मैं नहीं हूं. किसी को तो पता चला कि मैं नहीं हूं, वो ईश्वर है. और इसको जानने की टेक्निक को मैं तंत्र कहता हूं. टू नो दैट यू डोंट एग्जिस्ट. व्हेन यू नो दैट यू डोंट एग्जिस्ट, देन हु नोज, इट इज गॉड. जो लोग ये सोचते हैं कि तंत्र इज
कि ओ माय गॉड उसने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके ये कर दिया, वो कर दिया। उनके लिए ये जानना चाहती हूँ, अगर वो इतने पावरफुल होते तो क्या वो खुद के लिए नहीं कर सकते थे? एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। जब ये पता चल जाए कि मैं हूं ही नहीं और पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, सब महायोनि है, वैक्यूम है, ब्लैक होल है, तब मुक्ति हो सकती है। या जब ये पता चल जाए कि सब कुछ एक ईश्वर है, हम सब एक है, एक ईश्वर है, तब भी मुक्ति हो सकती है। मैंने बहुत सुना है, एंड माय फादर आल्सो हैड मेंशन्ड इट टू मी समटाइम्स, कि नहीं नहीं मैं जानता हूँ ऐसे तांत्रिक को जो कुछ करके आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। मैं And- कहता हूं, मैं पहले से ही कहता हूं कि हार्म पहुंचाना बहुत छोटी चीज है, और बहुत छोटी चीज है इसके लिए पॉसिबल है। जो ये जान लेता है कि वी ऑल आर वन, दे कैन चेंज। जैसे इस पॉडकास्ट से पहले मैंने आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव था, उसको राइट में कन्वर्ट कर दिया, आपको That's- दिखाया, और आपका नॉस्ट्रल चेंज किया। हाँ, मेरा चेंज करना सबको लगेगा कि मैं अपना नहीं चेंज कर पाऊं, मैंने आपका चेंज किया। और पॉडकास्ट के दौरान आपका लेफ्ट एक्टिव होना नेसेसरी था, तो मैंने आपका फिर से जब कुर्सी पे बैठे तब लेफ्ट कर दिया। देखिए अब लेफ्ट चल रहा है। लेफ्ट। तो स्क्रीन पे जितने हैं सबकी लेफ्ट नासिका चालू हो, ईड़ा नाड़ी चालू हो। जिनकी राइट चालू थी उनकी दोनों चालू होने लगी, और 1.5 मिनट में सबकी लेफ्ट हो जाएगी। तो आपके लिए और सारे ऑडियंस के लिए मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, मेरे लिए मैं बोल रहा हूं और मैं ही सुन रहा हूं, और जो शब्द है वो भी मैं हूं। तो जब मुझे ये करना आता है, मुझे आपकी नासिका चेंज करनी आती है, तो आपका फायदा और नुकसान भी करना आता होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आपका फायदा मेरा फायदा है, क्योंकि मेरे अलावा कुछ है नहीं इस दुनिया में। और आपका नुकसान मेरा नुकसान है, तो मैं नुकसान नहीं करूंगा। और जो ये नहीं जानते, वो छोटे मोटे तांत्रिक आपका नुकसान भी करते हैं और आपका फायदा भी करते हैं। हाँ, और बहुत ये भी सुना है कि जो तांत्रिक्स होती है उनकी जो लास्ट की लाइफ होती है वो बहुत पेनफुल और बहुत बोलते हैं कि गंदी डेथ होती है। लास्ट लाइफ क्या है? मृत्यु तभी आती है जब आपका शरीर सड़ जाता है, आपका मन काम करना बंद कर देता है, बुद्धि साथ देना बंद कर देती है, तो खराब ही होता है। कौन सी एक चीज है देश जी जो आपने शायद करी है एंड आपने फिर रिग्रेट किया? अगर अपने आत्म साक्षात्कार से या सिद्धि प्राप्ति से दूर हटना है तो रिग्रेशन लाइफ में रखना, रिग्रेट्स लाइफ में रखना, वरना जो हो रहा है सब माँ करवा ली है, ये जान के आगे बढ़ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि उसके ये सामान चाहिए या चीजें चाहिए, क्या एक्चुअली में लोगों को यू नीड सम थिंग्स फ्रॉम देम टू डू तंत्र, और एल्स तंत्र कैन बी परफॉर्म्ड जस्ट सबसे बड़ा साधन जो योगिक, वैदिक और तांत्रिक साधनाओं के लिए चाहिए वो आपका शरीर। Okay. बस यही कारण है कि अपने शरीर को भगवान शिव कहते हैं स्वस्थ और निरोगी रखना चाहिए, क्योंकि भोग और मोक्ष नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों का पूर्ति करता है। ये चारों का स्टूल जो है, इसका इंस्ट्रूमेंट जो है, जो ये चारों की प्राप्ति करवाएगा, वो आपका शरीर है। आपने देखा है, मैं और जितने मेरे शिष्य है, एक समय में आप भी ये हाथ में रखे बगैर हम लोग दिखते नहीं थे। तो ये गिनती के लिए काउंटिंग मशीन बहुत जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि इसके बगैर मैं गिन ही नहीं पाऊंगा। उंगली पे गिनूंगा, स्लो हो जाएंगे मंत्र, और मंत्र जितने स्लो होंगे उतना माइंड आइडल होगा, और माइंड जितना आइडल होगा उतने विचार आएंगे, और जितने विचार आएंगे उतना माइंड वीक होगा। और उसमें सबसे बदनाम तत्व है जिनको मकार कहते हैं। वो क्या है? मकार मतलब उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है जिसको प्रोहिबिट किया गया है। मकार जिसको ना किया जाए, ना को संस्कृत में म बोलते हैं। और दूसरा मकार का अर्थ ये है कि जो खुद रेस्टलेस है और दूसरों को भी रेस्टलेस करते हैं। जितने भी शब्द म से आए हैं वो खुद भी बहुत रेस्टलेस होते हैं और दूसरों को भी रेस्टलेस करते हैं। जैसे मदिरा, अल्कोहल, यस, मांस, फ्लैश, मत्स्य, फिश, मैथुन्य, सेक्स, मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा भी होता है, एंड ये हाथों की साइंस भी होती है। मैंने कुछ ऐसे मेडिटेशंस किए हैं आपके साथ जो आई कैन नेवर फॉरगेट। आई थिंक स्पेशली वो जो हमने सूर्य ग्रहण के टाइम
पानी में बैठ के, नाभि तक पानी अब नाभि तक पानी में बैठ के हम वर्सोवा बीच गए थे हाँ। एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड वी हैड, आपने कहा था एक्टिवेटेड अ कुंडलिनी इनसाइड द वाटर। इनसाइड द वाटर एंड यू सेड कि जो भी मंत्र सिद्ध करना है वो अभी, सूर्य ग्रहण है, महानदी है या हाँ। समुद्र में, कुटी स्थान है, कुटी मतलब नेवल, मूर्ति समक्ष है, मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्ध होते हैं। व्हाट इज द राइट वे टू मेडिटेट और प्रैक्टिस, या मंत्र सिद्धि अगर कोई करना चाहे क्या वो खुद कर सकता है या उसको गुरु की आवश्यकता है? बिना दीक्षा के मंत्र करोगे तो लेने का देना होगा। गुरु पकड़ो, दीक्षा लो और मंत्र करो, और ग्रहण के समय में करोगे तो अवश्य सिद्ध होगा और उसकी सिद्धि आपको प्रत्यक्ष दिखेगी, आपके काम में, आपके जीवन में, आपके स्वभाव में, आपकी मुक्ति में, आपके ज्ञान में, हर चीज में, आपके स्वास्थ्य में भी। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू डू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, या फिर आप मुझे बताओ कि ये सबसे पहले कर लिया करो जब तुम्हें लग रहा है तुम ऐसे जोन में जा रही हो जो सेफ नहीं है? भगवान शिव कहते हैं कि जिस चीज में आपको पॉजिटिविटी देने की क्षमता है, वही चीज में आपको नेगेटिविटी देने की भी क्षमता है। बिल्कुल। परंतु 3 चीजें ऐसी है जीवन में कि ये 3 की कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। ये 3 चीज में सबसे पहली रुद्राक्ष है। जब तक रुद्राक्ष कटा हुआ या डुप्लीकेट या बिना सिद्ध किया हुआ ना हो, तब तक वो नेगेटिविटी नहीं देता। रुद्राक्ष की केवल और केवल पॉजिटिव वाइब्स ही होती है। दूसरी भस्म। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो पंच महाभूत के मिश्रण से बनी है। आपका शरीर, ये माइक, मेरा आवाज, ये सब में पंच धातु है। एवरीथिंग विच इज इम्प्योर, विच इज अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, इज सब्जेक्ट टू इलनेस एंड डेथ। वो सड़ेगा भी, सड़ेगा को रोग में कहता हूं, हाँ। और वो मरेगा भी, मिटेगा भी। इसके लिए भस्म एक चीज है जिसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। और तीसरा आपका गुरु। अगर दिल से, मन से अगर किसी को गुरु मानो तो व्यक्ति अगर आपके साथ बुरा भी करे तो आपका कोई बुरा नहीं होता है। एक आदिवासी लड़का मामूली एकलव्य था, पैदा होता, मर जाता, किसी को पता भी नहीं चलता कि एकलव्य है। उसका अंगूठा उसके गुरु ने काट के उसका क्या नुकसान किया, वो इतिहास में लिखा गया, वो लेजेंड बन गया। आज जितने अर्जुन अवार्ड्स है उससे ज्यादा एकलव्य अवार्ड्स है। करेक्ट। तो गुरु ने नुकसान करके भी उसका फायदा किया। तो ये 3 चीज भगवान शिव कहते हैं कि इनका कोई नुकसान नहीं है। अगर नुकसान दिखाई भी दे तो लॉन्ग टर्म में फायदा है। तो इसलिए अपने आप को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप रुद्राक्ष धारण करो। 7, 8, 9, 10, 11 मुखी और 14 मुखी। Sex and tantra, what is the mix of it and what is the story behind it? थोड़ा सा अगर आप, आपको एक बेटी है ना, कैसे हुई? मैरिज एंड सेक्स आर पार्ट ऑफ ईच अदर। बट आजकल प्रॉब्लम क्या है ना हितेश जी, दैट पीपल हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड आई, बिकॉज आई एम अ लिटिल, मतलब आप मुझे बहुत ऑर्थोडॉक्स बोलूं या फिर ओल्ड स्कूल, old school orthodox, at the same time met the right people at the right time in my life, जैसे कि you. हाँ। So we are protected people, we are protected souls, but now this whole generation is taking sex very lightly. They feel it is 50 लोगों के साथ कर लिया, and I'm like, how can you exchange your energy with so many people, and how, what it does to your mind and your body and your soul? जो हमारा newer generation है, like now I'm a mom, तो of course वो protection is also there. So I want you to tell people that tantra also works through sex. It is a very integral part also. Like आप ज़्यादा अच्छा explain कर पाएंगे? See, first of all, Pari, I am not here to tell people what you want me to tell. Of course. So I will tell them what is truth. Tantra is life, and sex is a part of life. So sex is the part of tantra. But life is not only about sex. And tantra is also not only about sex. Sex is to man what food is to woman. कोई ऐसी स्त्री दुनिया में नहीं होगी जिसने खाना खाने के बाद डाइटिंग या फास्टिंग के बारे में नहीं सोचा होगा। होगा तो बताओ मुझे। और कोई ऐसा पुरुष इस पृथ्वी पे नहीं होगा जिसने सेक्स करते वक्त या सेक्स के बाद ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं सोचा होगा। होगा तो बताओ मुझे। उसके पार जाने की जो क्रिया है वो तंत्र है। There is no bigger enemy of sex than tantra. It helps you to grow beyond it, to go beyond it. But people have misunderstood. Once you go to the core of it, you will know that there is no greater enemy of sex than tantra.
एक बहुत अच्छी सुंदर चीज मेरे एक गुरु ने मुझे कही थी कि एक लड़की रास्ते से जाती है, उसको गली के गुंडे छेड़ते हैं, वो जाके उनको भाई बना ले, उनसे दोस्ती कर ले, फिर डर लगेगा उसको गली से गुजरने से? नहीं लगेगा। उसी प्रकार से अगर सेक्स एजुकेशन हमारी दुनिया में आ जाए, सेक्स एजुकेशन अगर हम सीख ले, तो सेक्स हमारे दिमाग से निकल जाएगा। उसका एजुकेशन अगर आपके पास आ जाए तो यू विल बी फ्री फ्रॉम सेक्स। या आपको सिर्फ सेक्स से दोस्ती करनी है, उसको सीखना है क्या है। वो काम तंत्र करता है। इसी वजह से तंत्र इज वन विच फ्रीज यू फ्रॉम लस्ट, नॉट विच टेक्स यू टुवर्ड्स लस्ट। मेरे साथ में कोई इंस्टाग्राम पे बोला हमारा तंत्र फेस्टिवल हो रहा है, आप आ जाओ ये फला देश में। मैंने कहा ठीक है। तो बोला हमारे आप हैंडल चेक करो इंस्टाग्राम। तो देखा तो सब ऑर्जीज हो रही है और सब तंत्र के नाम पे सेक्सी सेक्स हो रहा है। उनको पता ही नहीं है ये तंत्र क्या है। सो व्हाट इज जो आपका जो मेन फोटे है, हाउ व्हाट इज इट एग्जैक्टली एंड हाउ पावरफुल इज इट? कुछ I have imparted 10% of what I have known, because my forte makes me what I am, and that I'm not going to reveal to you or your audience. दैट इज ट्रू, बट इज देयर लाइक ऐसा जरूरी होता है दैट यू नीड टू, जैसे सिद्धि प्राप्त करना? Yes, true. You need to give up yourself. Are you ready for it? या दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल आर नॉट। That is one thing. गुरु बोलेंगे कूदो तो कूदो, मरो तो मरो, खाओ तो खाओ। जैसा गुरु बोलेंगे आंख बंद करके वो करना, वो मेरा फोटे है। गुरु भक्ति। ईश्वर और गुरु आत्मे मूर्ति भेद विभाजिनी। आप, आपके ईश्वर और आपके गुरु, ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। मेरा फोटे से मुझे पता है, मेरे गुरु को पता है, और मेरी माँ को पता है, मेरी देवी को पता है, और ये तीनों मैं ही हूँ, मुझसे अलग नहीं है। मैं ही अर्धनारीश्वर हूँ, गुरु और माँ। Suddenly I got a flashback of this whole episode that has happened with Mamta Kulkarni, that अभी I think उनको एक उपाधि दी गई थी and it has एक been, एक्ट्रेस थी ना ममता कुलकर्णी? yes, अच्छा, हाँ। ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया and then I think बहुत कंट्रोवर्सी हुई and all of that happened. So anything that you want to say about that? आपने एक संस्कृत वर्ड यूज किया, मेरी संस्कृत थोड़ी कमजोर है, इसके लिए पूछ रहा हूँ। टैग के बदले में क्या कहा आपने? उपाधि, मतलब उपाधि का क्या अर्थ होता है? एक पोजीशन दी गई। नहीं, और एक भी अर्थ होता है। उपाधि मतलब मुसीबत। अच्छा, ये मुसीबत भी- उपाधि है, हाँ बोलते हैं ना। हाँ, सारे टैग्स उपाधि है। दिया गया ये उपाधि थी, लिया गया ये उपाधि से मुक्ति है। तो उनको खुश होना चाहिए, और उनको उपाधि दी गई महामंडलेश्वर की, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और वो ममता कुलकर्णी में भी उतने ही ईश्वर है जितना मेरे में है और आप में है। पेशी, एक क्वेश्चन है that I really want to ask you from my heart, because मुझे ना इसमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी and somewhere I was in the middle of two things कि हाँ सही भी है और गलत भी है। आपकी शादी की बात कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं बात कर रही हूँ रणवीर अलाहाबादिया की। एक्चुअली आई हैव सीन इतने सारे उसके पॉडकास्ट एंड सारे स्पिरिचुअल, इतने अमेजिंग पॉडकास्ट दैट आई हिंदुस्तान को पॉडकास्ट क्या है, अगर ये सच में कोई जन जन के पास लेकर गया हो तो रणवीर है। एग्जैक्टली। और आज जो उसके साथ हुआ है, वॉज दिस अ कार्मिक थिंग कि भाई इतने सारे लोग जो ना नेगेटिविटी फैला रहे थे शायद यूट्यूब पे इतने टाइम से, एक इंसान ने उसका सारा ब्रंट अपने ऊपर ले लिया और वो सब खत्म कर, गलत चीज की, पर आप देखिए इम्पैक्ट उसने उसका भी पॉजिटिव ही हुआ है। सबसे पहली बात है कि कर्मा नाम की चीज ही नहीं है। हमारी पहले भी बात हुई थी, हाँ, और ये मैं 25 साल से आपको कह रहा हूँ, आप हो नहीं तो कर्मा किसका। मैंने आपको कहा कि फेम आता है तो हैप्पीनेस चला जाता है, एंड यू वांट फेम एंड पावर टू बी हैप्पी। तो रणवीर ने अपने फेम का प्राइस भरा है। लोगों ने राम और कृष्ण को नहीं छोड़ा, रणवीर जी को कहाँ छोड़ेंगे? फेम की कीमत चुकानी पड़ती है, और जितनी बड़ी मुसीबत आपके पास आई, आप उतने बड़े व्यक्ति बन के वापस आओगे। आप में और रणवीर में मैं एक सिमिलैरिटी देखता हूँ। हमेशा कॉर्पोरेट में, पुलिस में, सब जगह आप देखो दो की जोड़ी में लोग काम करते हैं, गुड कॉप बैड कॉप। कॉर्पोरेट में एक बेवकूफ होता है और एक इंटेलिजेंट होता है जी। इंटेलिजेंट आदमी हमेशा चोर होता है, और नादान आदमी, बेवकूफ आदमी हमेशा ईमानदार होता है। इसके लिए काम लेकर आए, इसके लिए चतुर चाहिए, और वो चोरी ना कर ले चतुर, इसके लिए उसके साथ में एक बेवकूफ को चिपकाना पड़ता है। ऐसे कॉर्पोरेट भी चलता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि चतुर इंसान
ईमानदार होता है, भोला दिल से होता है, चाइल्ड होता है, वो आप में खूबी है और रणवीर में खूबी है। थैंक यू सो मच। और केवल ऐसे भोले लोग भोलेनाथ बनने के करीब होते हैं, मुक्ति के आत्म साक्षात्कार के करीब होते हैं। दे आर ओल्ड सोल्स। रणवीर ने वहां पे जो किया, अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्टी की कि नहीं की मुझे पता नहीं, रोया, उसने कन्फेशन किया, माफी मांगी, पर एक है कि ही इज ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ। एंड दिस गाय, ये अपने आप से ईमानदार लड़का है और मुक्ति के द्वार पे खड़ा हुआ लड़का है। ये जल्दी आत्म साक्षात्कार पे पहुंचेगा। अगर इस कंट्रोवर्सी को जीतकर वो वापस अच्छे से अपने आप को ले आ पाया तो कामयाबी की भी, अभी जो उसकी शिखर है वो तो एक ही अलग ही शिखर है, उससे भी बहुत ऊपर वो जाएगा, पक्की बात है। चलिए, दैट फील्स वेरी नाइस टू हियर, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी के बाद, एंड आई नो दैट यू आर समबडी जो कोई भी चीज ऐसी ही नहीं बोल देते। द फैक्ट दैट यू सेइंग दिस, इवन आफ्टर यू रीच योर डेस्टिनेशन, मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी आप गलतियां करते हो। बिल्कुल। जैसे आपके IIT बाबा, उन्होंने भी काफी गलतियां की। अभी एक पॉडकास्ट वाले ने मुझे बुलाया था रणवीर और IIT बाबा के बारे में बात करने के लिए, और मैंने वो सारी बातें की जो उनको हजम नहीं हुई, तो उन्होंने वो पॉडकास्ट ही कैंसिल कर दिया। गलतियां सबसे होती है, और ट्रस्ट मी, गलतियां आपको बड़ा बनाती है। बहुत से लोग ब्लैक मैजिक और तंत्र को कंफ्यूज करते हैं या मिक्स करते हैं। क्या है उन दोनों का में डिफरेंस, क्या है, सिमिलैरिटी क्या? ये लाइट एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जी है ना ये लाइट। अब एटॉमिक एनर्जी से आप ये पूरे स्टूडियो को चमका सकते हो, या एटॉमिक बॉम्ब गिराकर ये पूरे स्टूडियो को खराब कर जला सकते। सकते हो। अब एनर्जी एनर्जी है, आपके इंटेंशंस उसको ब्लैक एनर्जी, ब्लैक मैजिक या व्हाइट मैजिक करता है। मैजिक मैजिक है, आपके इंटेंशंस उसको नेगेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं। एक बार एक बिल्ली को खर्चा करके लंदन भेजा गया कि जाओ तुम रानी को देख के आओ, और रानी के कुर्सी के नीचे के चूहे को वो डरा के वापस आई। मोची जाता तो जूते देख के आता, ज्वेलरी देख के आता, जो सुनार, फैशन डिजाइनर जाती तो रानी के कपड़े देख के आती है, लेकिन रानी को कोई नहीं देखता, क्योंकि जिसकी जितनी औकात उसको उतना दिखता है। जिसको ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट है उसको तंत्र में ब्लैक मैजिक दिखेगा, जिसको सेक्स में इंटरेस्ट है उसको सेक्स दिखेगा। लेकिन राज राजेश्वरी, महारानी, रानियों की रानी, राजाओं की रानी, मेरी माँ किसी को नहीं दिखती। जिसको माँ में इंटरेस्ट होगा ना, उसको ना कुर्सी के नीचे का चूहा, ना कपड़े, ना मुकुट के ऊपर लगा हुआ कोहिनूर, कुछ नहीं दिखेगा, माँ दिखेगी। कौन सी वो 4 क्वालिटीज हैं या 2 क्वालिटीज हैं जो आप कहते हो कि अगर किसी के अच्छे हॉरोस्कोप हो और चार्ट हो, फिर भी वो शायद अचीव ना कर पाए अगर वो उसमें वो 2-3 चीजें ना हो तो? एक, साधना, और ये चारों में सबसे लो कैटेगरी का मैं समझ रहा हूं साधना को। लेकिन साधना चाहिए। आपने जो एक्टिंग सीखी है, डायरेक्शन सीखा है, ये आपकी साधना है। दूसरी जो है ज्ञान, ज्ञान आप में होना ही चाहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। एजुकेशन नेवर स्टॉप्स। तीसरा जो ज्ञान से ऊपर है, बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, जो ना स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ना फेमस लोग होते हैं, ना मीडिया के लोग होते हैं। उसके लिए हमको या पार्टनर्स चाहिए या स्टाफ चाहिए जो हमको ऑर्गेनाइज कर दे। चौथी है टू बी फेमस। दिखते रहो, पॉडकास्ट में आते रहो, सोशल मीडिया पे दिखते रहो। ये भगवान विष्णु की कला है। अच्छे तरीके से कपड़े पहनो तो कुछ डिफरेंट दिखो अगर सक्सेसफुल बनना है। और पांचवी चीज है फेथ, डिवोशन, भक्ति। ये सबसे ऊपर मैं गिनता हूं। विश्वास और संशय, डाउट एंड फेथ, ये ट्रायंगल है। अपने पे फेथ, सामने वाले व्यक्ति पे फेथ, और पूरे समाज पे, पूरे सिस्टम पे फेथ। अगर एक पे फेथ रहेगा तो बाकी सब पे रहेगा। अपने पे फेथ, गुरु पे फेथ, और अपने ईश्वर पे और स्क्रिप्चर्स पे, अपने तंत्र पे फेथ। और सब कुछ है, ये चारों चीजें है आपके पास, लेकिन पांचवा फेथ नहीं है तो लिख के ले लो। आपकी कुंडली अच्छी हो, आप
दुनिया के सबसे बड़े साधक तांत्रिक हो तो भी कुछ बन नहीं पाओगे, ये गारंटी वाली बात। And there is a cult or there is a sign that everyone is talking about कि भाई अगर आपने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया है देन यू गेट फेम एंड इट इज समथिंग दैट दे आर डूइंग एंड इट इज अ रिचुअल या कोई प्रैक्टिस फॉलो करते हैं. मेरे हिसाब से तंत्र इज वर्शिपिंग देवी माँ, गॉड, गॉड, देवी शैव का. तंत्र है दे वर्शिप शिवा, गणेश तंत्र दे वर्शिप गणेश, लेकिन मैक्सिमम तंत्र जो अभी इस समय पृथ्वी पे है वो शाक्त तंत्र, मतलब देवी worship। देवी वर्शिप है. एंड ऑफ कोर्स हम कामाख्या देवी भी जा चुके हैं and हमें पता है कि उस जगह की क्या शक्ति है. तो व्हाट इज योर टेक, ये सच है, ये ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है मैंने इल्यूमिनाटी? आपको कुछ समय पहले मुद्रा की बात बताई, अगर आप उसको एडिट ना कर दो तो इन लोगों को भी पता है। वो जो आप साइंस की बात कर रहे हो वो मुद्रा है। आपके शरीर की सारी नसें और आपके दिमाग की ऑरा नसें, जिसको नाड़ियां कहते हैं, वो आपके हाथ में होती है। ये वाली जो देवी, आपके हाथ में, देवी की नहीं, ये जो आप साइंस की बात कर रहे हो, हाथ से साइन करते हैं, कुछ साइन बताते हैं, हाँ, ये करते हैं, ये करते हैं, नहीं, ये ये करते रहता हैं, है ना। ये करते हैं, ये सारी साइंस जो है ये मुद्रा है। ओके, और जैसे पहले कहा है कि जिस चीज का जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। लगाओ मुद्रा। सबसे बेहतरीन योग की सबसे पहली मुद्रा है वो चिन्ह मुद्रा। और मिस्टिक साइंसेस जैसे इल्यूमिनेटी बोल दो या तंत्र बोल दो, उसके सबसे पहली मुद्रा है मत्स्य मुद्रा, द फिश। ये मुद्राएं लगाओ। मुझे ऐसा लगता है, दैट इज माय गट फीलिंग, कि आजकल लोग जस्ट टू showcase or look cool they are doing this and they're making these signs and trying to get more attention because you know ये एक ऐसा word है जो थोड़ा Again, I will say, करते रहो, don't regret. Everything is taking you towards your self-realization, towards your happiness. मजा करो। दुख भी है, अगर आप उसको कुछ करके प्राप्त कर रहे हो तो उसके पीछे सुख भी अवश्य आएगा। absolutely always, you know, walk with caution and knowledge, I think, and I'm so grateful to you that you